সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বাধ্য হলেন কলকাতাকে ছাড় দিতে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, কলকাতার বেতারে নেতাজি সম্বন্ধে বলা হবে, আর অন্য কোথাও বলা হবে না। কি অদ্ভুত, শুনলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। এরপর এলো সেই কুখ্যাত ব্যাপারটা, আমেরিকা, ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তি মিলে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে একটি বিল পাশ করলেন যুদ্ধ অপরাধী, এবং কিছু নাম দিলেন। সেই নামের মধ্যে আমাদের প্রিয় নেতা, শ্রদ্ধেয় নেতা, সন্ত নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসেরও নাম ছিল। এবং নেহেরু সরকার সেই বিলটাতে সই করলো অন বিহাফ অফ ইন্ডিয়া। কি অদ্ভুত। তারপর সব নদী যেরকম সমুদ্র দিকে যায়, ঠিক সেরকম ইন্দিরা সরকার এলেন। ইন্দিরা সরকার এসে আর একটি মারাত্মক কাজ করলেন। কি করলেন না, রাষ্ট্রসংঘের যে ব্যানটা হয়েছিল যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে নেতাজির নামটা ইনক্লুড করা হয়েছিল, সেটা পাশ করালো যে এটা যাবজ্জীবন চলবে, এটা কোনোদিন কোনো টাইম বার থাকবে না, যখনই নেতাজি পাওয়া যাবে তখনই ধরতে হবে। এবং আমাদের প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা সরকার, তার প্রতিনিধি ওটা সই করলেন, মেনে নিলেন। অদ্ভুত লাগে, অদ্ভুত লাগে এই কারণে যে রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন জানানো হলো, তখন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আন্নান একটি লিখিত চিঠিতে জানালেন যে আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তার উপর যে ব্যান রয়েছে সেটাকে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি শর্টে বলছি, এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন পার্লামেন্টে তোলপাড় হতে আরম্ভ করলো, তখন এনডিএ সরকার, বিজেপি গভর্নমেন্ট, আমাদের অনেক আশা ছিল এরা অনেক কিছু করবে। তার আগেও মন্ত্রিত্ব পাওয়ার আগে এইসবই বলেছিল। সেই বিজেপি সরকারকে যখন এই প্রশ্নটা করা হলো যে কোফি আন্নান এই কথাটা বলেছেন, আপনাদের উত্তরটা কি, তখন লালকৃষ্ণ আদবানি তিনি একটু অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন, আমি আমেরিকা, ব্রিটেন সরকার এদের বলেছিলাম, ওরা বললো আমরা কিছু করিনি। যেন উনি কিছুই জানেন না। এটা যে রাষ্ট্রসংঘ অ্যাট দ্য ইনস্টেন্স অফ আমেরিকা অ্যান্ড ব্রিটেন অ্যান্ড আদার অ্যালায়েন্স পাওয়ার এটা করলো, সেটা উনি জানেন না। উনি সেটা এইভাবেই চেপে গেলেন, সরিয়ে দিলেন। এর মাঝখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে 1956 সালে সুরেশচন্দ্র বোস 2রা এপ্রিল নেহেরুকে একটি চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিল যে এই যে যুদ্ধ অপরাধীদের তালিকা তৈরি হয়েছে, তাতে কি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নাম আছে? যদি থেকে থাকে, সুভাষচন্দ্র বোস যদি বেরিয়ে আসে, তাহলে কি তাকে অ্যারেস্ট করে রাষ্ট্রসংঘের হাতে তুলে দেওয়া হবে? নেতাজির এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো উত্তরই দিলেন না জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। অবাক লাগলো। তারপর ইন্দিরা গান্ধী হয়ে গেল, এনডিএ সরকার, সে নেতাজির দুনোল দিয়ে এলো। তারপর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে একটা অর্ডার বেরোলো যে নেতাজির তদন্ত কমিশন আবার করতে হবে। বাজপেয়ী বাধ্য হয়ে মনোজ মুখার্জি কমিশন করলেন, এবং ইনডাইরেক্টলি মনোজ মুখার্জিকে ইনফ্লুয়েন্স এবং ওভার পাওয়ার করার জন্য উনি আর ওনার বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং রেনকোজি মন্দিরে গেলেন
নেতাজির ভরসার চিতাভস্যের শ্রদ্ধা জানাতে, মানে বউকে মেরে ঝিকে মেরে বউকে শিখিয়ে দিলেন যে মনোজ মুখার্জি তোমাকে কিন্তু এই পথেই যেতে হবে। কি করে হলো? তিনি যখন একটা কনস্টিটিউট করলেন, তারপর তিনি আবার গেলেন কেন রেনকুজি মন্দিরে যশবন্ত সিংকে নিয়ে? একটাই কারণ, আমরা যা ভাবছি, যে পথে চলছি, তুমি বিচারপতি হও আর যাই হও, তোমাকে ওই পথে যেতে হবে, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যা করো করো। এবং রেজাল্টটা কি দেখা গেল? যে একটি অদৃশ্য আঙুলির হেলনে মনোজ মুখার্জিকে কিন্তু রেনকোজি মন্দিরে চিতাভস্য দেখতে দেওয়া হলো না, ঢুকতে দিল না। কে, কারা করলো? যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কনসেন্ট না থাকে, আমরা সব বুঝলাম না। এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। পরবর্তীকালে নেতাজির কিছু হাড়গোড়ের ছবি ওনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, মনোজ মুখার্জিকে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইলেকট্রিক চুল্লিতে পোড়ানো হোক বা কাঠে পোড়ানো হোক, হাড়গোড়গুলো কি পড়ে না? তাহলে চিতাভস্যে হাড়গোড়ের ছবি কি করে এলো? আরো শুনলে অবাক হবেন, 1945 সালের পর থেকে টিল টুডে, আজ পর্যন্ত ভারত সরকার এই রেনকোজি মন্দিরে ওই চিতাভস্যটা রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে। আমরা জানি না, জানলেও গুরুত্ব দিইনি। আমার আগের বক্তা অজয় চক্রবর্তী একটা কথা বলেছিল, নেতা কোথায়? আরে নেতা কোথায়? একটা কথা আছে, जो नेता है वही देता है, जो नेता है देता नहीं वही नेता है। তাহলে এই তো নেতা, এই তো সব নেতা, নিচ্ছে দিচ্ছে না। নেতাজি সুশ্রীতে এলো, চলে গেল যশবন্ত সিংকে নিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য, ওভার পাওয়ার করার জন্য, যে তোমাকে এই পথেই হাঁটতে হবে। মনোজ মুখার্জি আর কি করবেন? যেখানে আসল জায়গায় জিনিসটা রয়েছে সেটা তিনি পেলেন না, ছাইটাও পেলেন না। এবার একটু অন্যদিকে আসি। এ তো গেল গভর্নমেন্টের ব্যাপার। তখন অবিভক্ত ভারতের, তখন সিপিআই ছিল, এখন সিপিআই, সিপিএম, সিপিএমএল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েছে, তখন সিপিআই ছিল। এই সিপিআই এই যে এত শহীদের রক্তে স্বাধীনতা লাভ করলো 1947 সালের 15ই আগস্ট, সেটার বিরুদ্ধে চলে গেল। কার আদেশে? বাদানভের আদেশে। রাশিয়ার তাত্ত্বিক নেতা বাদানভের আদেশে বলল, এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। এবং এরা পশ্চিমবাংলা, মণিপুর পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলন করেছিল এই সিপিএম, সিপিআই। কি চমৎকার! তারপরেও চমৎকার আছে, এরা নেতাজিকে দুম করে একদিন, এই কলকাতা থেকে নেতাজিকে দুম করে একদিন কুইসলিং বলল। মানে এই কুইসলিং কথাটার মানে আমরা অনেকে জানি, অনেকে জানি না। কুইসলিং হচ্ছে, নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ভিটকাম কুইসলিং। 1931 থেকে 1933 সাল পর্যন্ত তিনি তার নিজের দেশকে হিটলারের কাছে বেচে দিয়েছিলেন। আমরা মির্জাফর বলি, ওই যে কত বড় জিনিস, এবং সারা পৃথিবীতে ঘেন্না চিচি করে উঠেছিল এই ভিটকাম কুইসলিং এর বিরুদ্ধে। সেই কুইসলিং এর সাথে নেতাজির তুলনা করলো সিপিআই। এটা বলতেও লজ্জা লাগছে আমার, কিন্তু ইতিহাস তো, মিথ্যা কথা বলা যাবে না।
সব লেখা রয়েছে। আর আমি বাড়িয়েও কিছু বলছি না, অন রেকর্ড। তা এরা যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তো আমাদের প্রথমেই একটা কাজ করা দরকার। আমার এক বাঁকুড়ার এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে জানতো, রথ চলার সময় রাজা নিজে এসে, উড়িষ্যার রাজা নিজে এসে ঝাঁটা দিয়ে রাস্তাটা পরিষ্কার করেন, তারপর রথটা চলে। জগন্নাথ দেব বেরোন, জগতের নাথ। সেরকম আমাদেরও এই কাজটাই করতে হবে, ঝাঁটা দিয়ে হাঁটিয়ে দিতে হবে। যারা নেতাজির বিরুদ্ধে এখনো গলা ফাটাচ্ছে, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় সুভাষ। আমার দুঃখ লাগে। আমি আমার বইতে লিখেছি, আমি ভয় পাইনি। 7ম সংস্করণ চলছে আমার বইটা, আমি সেখানে লিখেছি। এবার আসি আধ্যাত্মিক দিকে, যে শুধু যদি বিজ্ঞানের দিকে চিন্তা করি, তাহলে একটা লোকে গড় পরমায়ু ভারতবর্ষে 100-র মতো, 100 কি 100 নিচে, তাহলে এতদিন কি করে বেঁচে থাকে? প্রথমে বলি, তৈলঙ্গ স্বামী, যাকে চলন্ত শিব বলা হতো কাশীর, 280 বছর বেঁচেছিলেন। বাংলার লোকনাথ ব্রহ্মচারী 160 বছর বেঁচেছিলেন। আমি এখনো একজনকে জানি যিনি 115 বছর চলছে, বালেশ্বরে থাকেন, তিনিও সাধু। সেরকম একজন সাধুর কাছে আমি গিয়েছিলাম, সেটা পরে আসছে। তার আগে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি ছোট্ট কয়েকটা কথা বলি। 1899 সালে প্রভু জগন্নাথ একটা অদ্ভুত কথা বললেন, ইন্ডিয়া উইল বি ডিভাইডেড, ভারত দুভাগ হবে, and the sovereignty of India will be at stake, ভারতের সার্বভৌমত্ব তার বিপন্ন হবে। Then a dead leader will come out and save the country. লিডার কখনো ডেড হয় নাকি? বা ডেড হলে লিডার হলে কি করে? সে দেশ বাঁচাবে কি করে? কবে বললেন? 1899 সালে। সুভাষের জন্ম কখন? 1997 সালে। 2 বছর বাদে এই কথাটা বললেন। তার 62 বছর বাদে এই অদম নিমতলার এক উচ্চকোটি মহাপুরুষের কাছে গিয়েছিলেন, যাতায়াত করতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, সুভাষ বেঁচে আছে, সুভাষ আসবে, আমি তখন থাকবো না, কিন্তু তুই দেখতে পাবি। কবে? 1962-63-তে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। আরেকটা ফোরকাস্ট তিনি করেছিলেন, আমার সঙ্গে বলেছিলেন, তুই প্রফেসর হবি না, তুই অন্য কিছু হবি। যেটা বলেছিলেন সেটা কি হয়েছিলাম, কিন্তু আমি এটি মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম। যাই হোক, এই 1962 সালের পরে 48 বছর বাদে আমি বরফানি দাদাজি মহারাজের কাছে গেলাম, যার জন্ম 1792 সালের দিওয়ালির দিন, এখনো বেঁচে আছেন। নানা কথার মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুভাষচন্দ্র কি বেঁচে আছেন? বললেন হ্যাঁ। কি করে সম্ভব? বলে তাহলে তুমি আমার সাথে কথা বলছো, আমাকেই তো তোমার অবিশ্বাস করা উচিত, আমার তো 200 বছর পার হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। সুভাষ শুধু বেঁচে নেই, সাধুদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান যে মার জ্ঞানগঞ্জ, সেইখানে সুভাষ গিয়ে তপস্যার দ্বারা সমস্ত কিছু আয়ত্ত করেছেন। তার মৃত্যু নেই। সে যদি মনে করে তাহলে চলে যাবে, কিন্তু সে মনে করেনি, এখনো করবে না, সে আসবে। এই দাদাজি মহারাজ, বরফানি দাদাজি মহারাজ এই কথাটা আমাকে বলেছিলেন। ওনার এখন বয়স 220, আমাকে মানতে বাধ্য হলো।
এই কারণে বাদ দিলাম, যদি উনি যদি 220 বছর বেঁচে থাকেন, আর যে উনি বলছেন ইনি জ্ঞানগঞ্জ থেকে তপস্যা করে বেরিয়ে এসছেন, তা তো হতে পারে। আর যেহেতু উনি মহাপুরুষ, ব্রহ্মর্ষি, এখন আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র নয়, ব্রহ্মর্ষি, যদি তাই হয় তাহলে তো কোনো ভুল নেই। আমাদের দেশে তো লোকনাথ ব্রহ্মচারী, কলকাতা মানে বাংলাদেশে লোকনাথ ব্রহ্মচারী 160 বছর বেঁচে ছিলেন। কি করেছিলেন? ওই ব্রহ্মচর্য, ওই উচ্চ জ্ঞান মার্গের মধ্যে অধিষ্ঠান করে এইগুলো আয়ত্ত করতে হয়, অত সোজা না। এই যে ঘটনাগুলো আমি বললাম একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিলাম। কেন না আজ পর্যন্ত যে অত্যাচার সিন্স 1945 18 আগস্টের পর থেকে হয়ে চলেছে, তার সঙ্গবদ্ধ কোনো কিছু শক্তি আমরা দেখতে পাইনি। আজকে বিজয় চক্রবর্তী, অজয় চক্রবর্তী এনারা চেষ্টা করছেন, সাধু প্রচেষ্টা। যে কোনো একটা কারণে আমি বলেছিলাম দেখো করো তোমরা, কিন্তু সৎ কাজে সতেক বাজা। আমি জানি এখানেও কিছু লোক আছে যারা এই খবরগুলো পাচার করে দেবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে, এটা আমি জানি, আমি জেনেই বলছি। আমি ভয় পাচ্ছি না। যদি ভয় পেতাম কথা সরিয়ে দেওয়া যায়। আমি রেকর্ডের বইতে লিখে দিয়েছি, হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ অ্যান্ড হি উইল বি কামিং। কিন্তু আমাদের কি করতে হবে? আমাদের কি করতে হবে? আমাদের একটাই কাজ করতে হবে, এই মেকি সুভাষ প্রেমীদের সরাতে হবে। নেহরু কি কম সুভাষ প্রেমিক ছিল? ইন্দিরা গান্ধী কি কম সুভাষ প্রেমিক ছিল? যার ফলে ওই টাইমটা এক্সটেন্ডেড হয়ে গেছে, আনলিমিটেড পিরিয়ড। বাজপেয়ী এটা কি কম সুভাষ প্রেমিক? তারা মুখার্জি কমিশন বসিয়ে ওইখানে চলে গেল। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া এটা কম সুভাষ প্রেমিক? যার জন্য নির্লজ্জের মতো ওরা কুইস্লিং বলেছিল, ওরা অনেক কিছুই বলেছিল, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবিও বলেছিল। কিচ্ছু এসে যায় না, একটাই কারণে কিচ্ছু এসে যায় না। আমি মনে করি সুভাষ হচ্ছে উদয়মান সূর্য, তার অস্ত হবে না। সেই সূর্যের উদ্দেশ্যে সেই সূর্যের উদ্দেশ্যে যে যতই ঢিল ছুড়ুক, কাদা ছুড়ুক, সূর্যর কাছে পৌঁছবে না। সেই ঢিল, সেই কাদা নিজের কাছেই চলে আসবে, কারণ ওখানে সূর্যরূপী নেতাজি বসে আছেন, তার নাগালের কাছেই কেউ যেতে পারবে না। আজ আমাদের ডেডিকেশন দরকার। এই ডেডিকেশন নিয়ে যদি আমরা এগোই এবং মহাপুরুষদের বাণী যদি সত্যি হয়, 1899 প্রভু জগবন্ধু, 1962 নিমতলার দাদু, 2008 বরফানি দাদাজি মহারাজ, এবং আমার সাথে পরশুদিন কথা হচ্ছে, আমি এরকম যাচ্ছি আসানসোলে, বলবো তো? বলে হ্যাঁ বলো, এও भी बोल देना वो आता है। মানে বললো আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, ও আসে, প্রায়ই আসে, তোমরা যদি চিনতে না পারো আমি কি করবো? আমি এর মধ্যেই জানতে পেরেছিলাম গুরু পূর্ণিমার দুদিন আগে, 3রা জুলাইয়ের কয়েকদিন আগে উনি এসছিলেন এবং অমরকণ্ঠকে বরফানি দাদাজির আশ্রমে উঠেছিলেন। একটি সন্ন্যাসিনী মেয়ে, সে এই আসানসোলেরই মেয়ে, সে দেখেই চিনতে পেরেছিল। যে বাংলায় কথা বললো, বললো আমি একটা ছবি তুলবো আপনার। বললো না। আপনি কোথায় উঠেছেন?
রামকৃষ্ণ মিশনে। বিকেলবেলা যাব, এসো। রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে দেখলো এরকম ধরনের কোনো সাধুই আসেননি। ঠিক সেই দিন অযোধ্যাতে দাদাজি বীরভূমের এক ভক্তকে বলেছিলেন, सुभाष अभी इंडिया में है, तुम लोग ढूंढो। अरे भगवान को पहचाना इतना सीधा नहीं है, तपस्या करो, मिल जाएगा तुमको। সেই দিনই উনি ওখানে এসে বসছিলেন। আমাকে পরের দিনই আমাকে ফোন করে আমাকে জানিয়েছিল যে বাবা এরকম এসছে, আমাকে ছবি তুলতে দিল না, কিন্তু তোমার বইয়ের সাথে একদম সব কিছু মিল, বসা টসা সব। আমরা চিনতে পারি না, আমাদের চিনতে হবে। কিন্তু চেনার আগে আমাদের সরিয়ে দিতে হবে সেই বিশ্বই মির্জাফরের দলদের, যারা কুমিরের কান্না কেঁদে চলেছে এখনো। সেই জন্যই বললাম বন্ধুগণ, এটা যেন ক্ষণিকের জন্য না হয়, এটা যেন ক্ষণিকের জন্য না হয়, ক্ষণিকের উন্মাদনা যেন না হয়। আমরাও বলবো করেঙ্গে গিয়ে মারেঙ্গে, নয় দেখে যাব, নয় মরে যাব। মরে যাওয়ার অনেক পথ আছে। আজকাল কেউ কেউ গুলি করে মারে না, অ্যাক্সিডেন্টে মেরে দেয়। আমি জানি, আমার অভিজ্ঞতা বলছে। সেই জন্যই বললাম ভয় পেলে চলবে না, এগিয়ে আসতে হবে। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আজকে যদি আমি এই অসুস্থ শরীরে চলে আসতে পারি সুভাষের নামে, অজয়ের মতন ছেলেরা, ইয়াং ছেলেরা যদি এগিয়ে আসে, আমার 70 বছর পার হয়ে গেছে বয়স, আমি এসছি, কতদিন বাঁচবো জানি না, কিন্তু যতদিন বাঁচবো ততদিন তারই ধ্যান করব, স্মরণে মননে জয়ানে। তাই শেষকালে একটা কথা বলি, দিদি মাঝারে তারে রাখবো, যেতে দেব না। দিদি কমলে তারে রাখবো, যেতে দেব না। ছেড়ে দিলে তাকে তো আর পাওয়া যাবে না। নমস্কার। सत्यम, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी आए हुए बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, अपने नौजवान भाइयों को सादर जय हिंद। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 64 सालों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां पे पैदा हुए, आज वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी आप सभी लोगों को प्राप्त हुई। 64 साल हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा मुर्दा सुनते हुए, लेकिन हकीकत यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। अभी आप लोगों को हमारे काफी बड़े बुजुर्गों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, देश के बारे में, आज की राजनीति के बारे में बहुत सी जानकारियां दी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही चर्चा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहां है, कैसे हैं, कब आएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक सपना था कि देश में पूर्ण आजादी आएगी, लेकिन वो सपना साकार नहीं हुआ नेताजी का, वो अधूरा रह गया। तो है देश के नौजवानों, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों से हमारा अपील है कि एक बार उठ खड़े हो जाओ। 64 साल हो गए जिन्होंने अपने देश को पूरा परिवार समझ लिया और अपने जीवन को एक साधु के वेश में दर दर की ठोकरें खिला दी। किसके लिए? पूरे विश्व के लिए, विश्व की जनता के लिए। धन्य है ये देश जिन्होंने अपने देश, जिन्होंने अपनी जनता, अपने देश की माताओं बहनों को परिवार समझ करके एक साधु के वेश में जीवन यापन कर दिया। आए देश के नौजवानों, धन्य है ऐसे महान पुरुष जिन्होंने पूरे जीवन इस देश की आजादी में
आज अपने जीवन को लगा दिया। तो ऐ देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, अब बहुत समय कम बचा है सतयुग का, बहुत थोड़ा समय बचा है परिवर्तन का। तो एक साथ ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हम मानव जाति बन करके, इंसान बन करके अपने देश को बचा लें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदम से कदम मिला दें। देश में पूर्ण आजादी आ जाए। जिस तरीके से हमारे महाराज जी ने 911 समझौतों की बताया कि देश आजाद हुआ था 900 शर्तों पे, 911 समझौतों की शर्तों पे। आज वो देश आंशिक आजादी, पूर्ण आजादी नहीं मिली। हमारी माताओं बहनों के साथ कितना नंगा नाच, कितना अत्याचार, भ्रष्टाचार, कत्लेआम, लूटपाट, घूसखोरी, छीना झपटी आज पूरे देश में हो रही है। आए देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, धन्य है भारत मां, आज जो बर्दाश्त कर रही है, उनके अंगों को काटा जा रहा है। आए माताओं, बहनों, जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, मीराबाई, शीलाबाई ने निकलकर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही समय आ गया है, आज वही वक्त आ गया है, आज वही टाइम आ गया है। जब तक देश में हम युद्ध नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। बिना युद्ध के परिवर्तन नहीं होगा। एकजुट होकर के परिवर्तन, एकजुट होकर के ताकत, एकजुट होकर के आवाज लगा दें कि है कहां सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देश की बर्बादी कर दी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उनका देश से नामो निशान मिटा दिया। धन्य है ये देश। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने जान की बाजी लगा दी। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानी दे दी, आज उनका नामो निशान मिटा दिया। देश में रहा कौन, देश में आया कौन जिन्होंने देश को लूटा, देश की जनता का शोषण किया, आज उनका नाम लिया जाता बड़े हर्ष उल्लास के। धन्य इस देश के रहने वाले लोग जिन्होंने उन वीरों को भुला दिया। आज वही मसीहा आ गया। 64 सालों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाना होगा, भारत देश बचाना होगा। भारत देश बचेगा, राम राज्य आएगी। इन सभी 64 सालों के बाद रावणों का विनाश होगा। मुट्ठी भर लोगों ने करोड़ों करोड़ों जनता को कितना अन्याय, कितना जनता के साथ शोषण किया, और कुछ ही लोगों ने देश की आजादी दिलवाई और थोड़े ही लोग फिर आएंगे आजादी के लिए। सब नहीं आएंगे, मुट्ठी भर लोग ही इस देश की आजादी के काम आएंगे। जिस तरीके से राम ने बंदर भालुओं का के साथ परिवर्तन किया, उसी तरीके से हम लोग एकजुट होकर के आवाज लगा दें कि है कहां सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज पूरे देश को सुभाष चाहिए। हिंदू मुसलमान को सुभाष चाहिए, खेत और खलिहान को सुभाष चाहिए, सीमा की जवान को सुभाष चाहिए, माताओं बहनों को सुभाष चाहिए, पूरे देश की सीमा को सुभाष चाहिए। आज मेरे देश को सुभाष चाहिए, आज मेरे देश को सुभाष चाहिए। आए देश के नौजवानों, बंगाल की खाड़ियों से सुभाष की आवाज आएगी, आवाज आ रही है। आए माताओं बहनों, जिस तरीके से आपने मेरा जन्म ले दिया, उसी तरीके से मुझे बचा लो। है मुझे आज कोई बचाने वाला, जो मुझे कोई बचा ले। वही मसीहा आ गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, भारत देश बचाएंगे। पूरे देश में जिस तरीके से हमारे सीतापुर उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते थे, मौनी बाबा के नाम से, हमारे वहां मौनी बाबा के नाम से रहते थे।
सन 90 से आज तक मेरी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, जाओ बच्चा, जन जन में आवाज लगा दो, सोई हुई जनता को जगा दो। 64 सालों से मां बहनों का खून पसीना चूस लिया, नंगा करके लूट लिया, देश में गौ हत्या करा दी, कत्लेआम। इस देश को मिटाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आवाज लगा दो। आए मां बहनों, उसी तरीके से निकल पड़ो जिस तरीके से देश की आजादी के लिए सबने जान की बाजी लगाई। आज वही समय आ गया है। सन 2012 में बंगाल की खाड़ी से आवाज आने लगी कि ऐ सुभाष, हम कदम से कदम मिला करके तुम्हारा साथ देंगे। आज वही इस चौखट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज आ रही है। अब घर में पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच करके पूरा गेट खुला हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी अपने घर में घुसने वाले हैं। तो एक बार कि सोए हुए खून को जगाने के लिए, आजादी की आबरू बचाने के लिए अब तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाना पड़ेगा। चाहे मुझे आके कोई गोली मार दे, खाल मेरी जिंदा ही यहां उतार दे, चीख चीख कर यही ऐलान करूंगी, सच्चाई की बात सरेआम करूंगी। नेताओं को वोटों का विधान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जिसे हिंदुस्तान चाहिए। आग लग रही यहाँ क्यों खालिस्तान की, गोरखाई लैंड और मीजो विधान की, धज्जी उड़ रही यहाँ क्यों राष्ट्रगान की, अर्थी जल रही यहाँ क्यों संविधान की। इन सभी सवालों का जवाब एक है, इन सभी सवालों का नकाब एक है। राजनीति चंडी से बरबंडी हो गई और दिल्ली की हुकूमत एक शिखंडी हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत माता की, भारत माता की। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, खतरे में आजादी आज पड़ी हुई है। एकता अखंडता पर वार हो रहे, जो थे अपने वो गद्दार हो रहे। दंगे लूटपाट को दबाने के लिए, गद्दारों को गद्दी से हटाने के लिए, गद्दारों को गद्दी से हटाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ेगा। चाह सोचने विचारने का वक्त आ गया, साथियों ललकारने का वक्त आ गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से देश बड़ा है, सत्ता के दावेदारों से देश बड़ा है। जो भी देशद्रोहियों के गीत गाएगा, दारू मुर्गे बिरयानी इनको खिलाएगा, उसको देशद्रोही जैसा नाम मिलेगा, चौराहों पर गोली का इनाम मिलेगा। नौजवानों, देश की पतवार थाम लो, वक्त कह रहा उठो तलवार थाम लो। सांप्रदायिकता आग को बुझाने के लिए, एकता अखंडता बचाने के लिए संविधान दूसरा बनाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाना पड़ेगा। आए देश के नौजवानों, ये अब ताड़ी बजाने से काम नहीं चलेगा। बहुत दिन ताड़ी बजाए हो, ये बाजीगर का तमाशा देखे हो, ताड़ी बजी, तमाशा दिखाया और तमाशा दिखा करके फिर ताड़ी बजा दिए, खेल खत्म हो गया, चले गए लूट करके। आए देश के नौजवानों, ये बाजीगर का तमाशा नहीं होने जा रहा जो आप लोग ताड़ी बजा रहे हैं। ये देश की कुर्बानी, ये देश की आजादी, ये देश का परिवर्तन, ये देश का नया विकास होने जा रहा है, जिसमें एकजुट होकर के आवाज लगा दो कि है कहां सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। ये बाजीगर का तमाशा नहीं, हम तमाशा दिखाने याद देख करके चले जाओ अपने घर में लेकर के, बस बता दो वहां पुड़िया खोली और मंत्र मारा तो वहां बन गया आदमी से एक खिलौना। ये तमाशा नहीं है, ताड़ी मत बजाइएगा। ये देश की कुर्बानी के लिए उन क्रांतिकारियों से पूछिए, आप ताड़ी नहीं बजाई थी। ताड़ी तो आज के हिजड़े बजाते हैं। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी, सपा और बासपा, भाजपा कांग्रेस वाले मंत्री नेता, वो ताड़ी बजा करके खेल खत्म कर देते हैं और लूट करके चले जाते हैं। आए माताओं बहनों, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके चंगुल में मत फंसो। 64 सालों से ताड़ी बजवा बजवा करके तुमको लूट करके चले गए। अब वो समय आ रहा है, अपने खून पसीने की कमाई को एकजुट होकर के इनसे ताकत दिखा दो कि एकजुट होकर के है कहां सुभाष, उसका पर्दाफाश ये ईंट से ईंट बजा दो। इन नेताओं से कह दो
अब तुम्हें भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत दिन ताड़ी बजवाए हो तुम लोग, अब ताड़ी नहीं बजाएंगे, लाठी और डंडे से, तलवार और तोप से इनका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय सुभाष। एक बात सुन लीजिए, अगर क्रांतिकारी ताड़ी बजाए होते तो देश का परिवर्तन नहीं होता, अंग्रेज लोग नहीं भागते। हम लोग ताड़ी बजाते बजाते इनके चंगुल में 64 सालों से तमाम लोग फंसे हुए, मुट्ठी भर लोग कमा खा करके अपने ऐसा आराम में मस्त हैं। हम लोग ताड़ी नहीं बजाएंगे, हम लोग देश की, इस देश की, भारत मां की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर के किया है। कहा सुभाष, उस सुभाष की इनसे अपनी तलाश, अपने सुभाष को मांगेंगे। इस भारत सरकारों से कह दो 64 साल हो गए देश की आजादी को बर्बादी में बदल दिया, आजादी नहीं मिली, ये ताड़ी बजा करके सबको लूट लिए। हम करो, इसको अच्छे काम में लगा दो। जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई ने इंकलाब का नारा लगाते इस देश की आजादी ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने माई रंग दे बसंती चोला कितना उन्होंने गा करके और मार मार हंटरों से उनकी खाल उधेड़ दी गई, लेकिन आजादी का उन्होंने पासा नहीं पलटा। लेकिन ताड़ी बजाओ नहीं, ताड़ी बजाने से परिवर्तन नहीं होगा, खेल होगा। और खेल होगा, खेल खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसी भूमि पे पैदा हुए हो जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने ताड़ी बजा करके इस देश की आजादी नहीं दिलवाई। अगर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के लिए दर दर की ठोकरें खा, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हर मां बहन का, इस बढ़ चढ़ करके भारतीय सुभाष सेना के कार्य में अपना कदम से कदम मिला दें और इन नेताओं से 64 सालों से अपना बदला ले लें। जिस तरीके से 64 सालों से इन नेताओं ने नंगा नाच नचा दिया, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, कत्लेआम पूरे देश में फैला दिया, और उसी देश में हम ताड़ी बजाते हैं। धन्य है ये देश, धन्य है भारत मां जिन्हें उन्होंने पैदा किया और उस पे हम जन्म लिए और इस देश का कायाकल्प नहीं कर पाए। तो आइए एक साथ एकजुट होकर के कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करिए। उनका सपना था कि देश में पूर्ण आजादी होनी चाहिए, देश में राम राज्य की स्थापना चाहिए, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, एक साथ एकजुट होकर के आजादी लेना होगा। इन नेताओं का सफाया करना होगा। इन मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश को बर्बाद करके लूट लिया। आए देश के नौजवानों, धन्य है ये देश, धन्य है वीरों की पृथ्वी जहां पे हम लोग पैदा हुए। आइए, जिस तरीके से नेताओं ने क्या किया, किस तरीके से लूटा, किस तरीके से बर्बाद किया, कि छीना झपटी, लूटपाट और चारों ओर तबाही है। चोरी मुलजिम चोरी, हाकिम देता चोर गवाही। चोरी और सीना जोरी और चोरी भी सरकारी है। चोर 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 मौसेरे भाई, चोर जांच अधिकारी। हर कुर्सी अंधी बहरी है, हर कुर्सी हत्यारी है, हर कुर्सी के हर पाए पर पंजीकृत गद्दारी है। देश की गर्दन के ऊपर सियासत का खूनी पंजा है, पुलिस और अफसरशाही का बढ़ता रोज शिकंजा है। सांसद से लेकर सड़कों तक जंगल के कानून यहाँ, और जिसने भी आवाज उठाई होता उसका खून यहाँ। अब तो लगता है भारत में चंडी का नर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। बिना युद्ध के परिवर्तन नहीं होगा। मंत्र तमाम लोग दे गए। बाबा जय गुरुदेव बेचारे कितने दिन से मंत्र देते चले आए, परिवर्तन नहीं कर पाए। उनका सपना था कि ऐ देश के नौजवानों, बच्चों, करोड़ों करोड़ों इनके शिष्य थे, लेकिन कहा कि जब तक परिवर्तन नहीं आ जाएगा, सतयुग नहीं आ जाएगा, तब तक मैं जाने वाला नहीं। लेकिन इन नेताओं ने दबा दिया, कहीं दबे हुए हैं, मरे नहीं ने बाबा जय गुरुदेव, वो कहीं दबे हुए हैं। परिवर्तन के समय में बाबा जय गुरुदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश का कायाकल्प करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ए दादा, कितने दिन से तमाशा देख रहे हो कि आज सोनिया गांधी को बना दिया, आज ममता बनर्जी को बना दिया अपने वहां, कल किसी को बना देंगे, परसों किसी को, लेकिन किसी से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ अपना खून पसीना लगा दो, अपनी कीमत को लगा दो, अपनी मेहनत को लगा दो, लेकिन इनसे क्या मिलेगा? शोषण।
शोषण करेंगे जनता का। मिलेगा क्या कि कितनी बार तमाशा देखा परिवर्तन की आंधी का, हर कुर्सी पर बैठा देखा चेहरा के अपराधी का, इनको देखा उनको देखा, देखा दरबार यहाँ, और जिसको भी दिल्ली पहुंचाया निकला हुआ गद्दार यहाँ। सत्ता के पूंजी के पर नाक दिखाई पड़ता है, हर मंत्री के चेहरे पर एक दाग दिखाई पड़ता है। एक रात में ही सत्ता बेईमान बना दी जाती है, अरबों खरबों की थैली इन पर पहुंचा दी जाती है। महंगाई का राज ही है, खेल ही बर्बादी का, देश लूटना अर्थ हो गया भारत की आजादी का। रिश्वतखोर दलालों का अब जूतों से बंधन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। आए देश के नौजवानों, खून पसीना बहने पर भी पेट नहीं भर पाता है, उधर रात में दिन रात फूलता जाता है। खाल खींच डाली गरीब की महंगाई के हंटर ने, आटे तक बाहर कर डाली बेकारी के खंजर ने। बच्चों का पढ़ना लिखना, ऊपर से कुंवारी शहजादी, और रोटी रोजी गई जहन्नुम हस्ती तक भी लुटवा दी। बिना कफन जब बिटिया को जिंदा जलवाया जाता है, लोकतंत्र अभिशाप बन गया तभी समझ में आता है। खत्म नहीं होगा हरगिज खाना सल्फास की गोली का, निश्चित है त्योहार रचेगा यहाँ खून की होली का। कली कली हर सुमन सुमन, खूनी हर उपवन होगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो होगा लेकिन खून। ऐ नेता, ऐ देश के नौजवानों, माताओं बहनों, ए दादा, मंत्र पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। राम चाहते मंत्र पढ़ करके रावण का विनाश कर देते, राक्षसों का विनाश कर देते, तो नहीं किया। उनको भी 14 साल दर दर की ठोकरे जंगलों की खाक छानी पड़ी। कृष्ण को 28 साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तब जाकर के परिवर्तन हुआ। कोई भी साधु, कोई भी संत कह दे मंत्र पढ़ करके इस देश का कायाकल्प कर देंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन। देश का परिवर्तन तभी होगा जब खूनी परिवर्तन होगा। बिना युद्ध के किसी युग में अंग्रेज नहीं गए, होड़ मुगल के जमाने में भी युद्ध हुआ, बिना युद्ध के परिवर्तन का हम मानने के लिए तैयार नहीं। अब वो समय आ गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समय आ गया है। अपने हिसाब से उनका क्या कहना है, देश के नौजवानों, हुक्का लगा दो, उनके सपनों को साकार कर दो, उनके कदम से कदम मिला दो, तो ये वादा है परिवर्तन होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलयुग में अब दूसरे तरीके से परिवर्तन करेंगे। सतयुग में दूसरे तरीके से हुआ, त्रेता में दूसरे तरीके से हुआ, द्वापर में दूसरे तरीके से, कलयुग में दूसरे तरीके से परिवर्तन होगा। होगा युद्ध के बिना नहीं परिवर्तन होगा। आए देश के नौजवानों, लूली लंगड़ी आजादी ने अब तक हमको दिया क्या है? ओए ओए चुम्मा चुम्मा, इलू इलू हवा हवा। चोली के पीछे से निकल देश कबूतर बना दिया, सैया से बोलिंग करवाकर देश नपुंसक बना दिया, सिगरेट जैसी टांगे दे दी, पिचके पिचके गाल दिए, जनखों जैसी चाल और हिप्पी जैसे बाल दिए, बेकारी भुखमरी गरीबी महंगाई के घाव दिए, निर्दोषों का लहू बहाते कितने दुष्ट चुनाव किए, गद्दारों को ताजपोशिया, खुददारों को गोली दी, बेईमान को इज्जत दौलत मेहनत कस को झोली दी, कौओं को दरबार कचहरी, हंसों को वनवास दिया, गधों को ऊंचे ऊंचे पद और घोड़ों को संन्यास दिया। भ्रष्टाचारी भ्रष्ट व्यवस्था को जिंदा दफनाने को नेताजी तैयार खड़े हैं, फिर से युद्ध रचाने को नेताजी तैयार खड़े हैं, फिर से युद्ध रचाने को। शर्तों का फोड़ा दी था स्वतंत्रता के फाटक पर, सारे नेता पागल हो गए आजादी के नाटक पर। गांधी रोते रहे और जिन्ना को पटा लिया, जिन्ना को भड़का भड़का कर कौमी दंगा करा दिया। हिंदू मुस्लिम की लाशों पर तब ये पाकिस्तान बना, भगत सिंह अशफाक और बिस्मिल का हिंदुस्तान बटा। 52 वर्षों के पट्टे पर मिली हुई आजादी थी। आजादी क्या, इसके अंदर छुपी हुई बर्बादी थी। लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था को अपनाया जाएगा, इंग्लैंड से पास कराया जाएगा, जो 16 अरब रुपया का इंग्लैंड के ऊपर भारत मांग न पाएगा। यदि सुभाष आता है तो इंग्लैंड को सौंपा जाएगा। शर्तों का गुमनाम पुलिंदा खोल हमें दिखलाने को नेताजी तैयार खड़े हैं, फिर से युद्ध रचाने को नेताजी तैयार खड़े हैं, फिर से युद्ध रचाने। आए देश के नौजवानों, वही मसीहा आ गया 64 सालों के बाद, जिसकी तलाश थी, जिसका इंतजार था, वही मसीहा आ गया। उस मसीहा के साथ हम कदम से कदम मिला दें, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाएं और देश की आजादी, इस देश का भाग्य बदल जाएगा। इस देश में अत्याचार भ्रष्टाचार खून खराबा कत्लेआमों का विनाश हो जाएगा। तो वह देश के नौजवानों, एक बार आवाज लगा दो कि है कहां सुभाष,
उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुभाष चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इन नेताओं से कह दिया है, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, राक्षसों, इस कलयुग में रहने वालों, अब तुमको ईंट से ईंट का जवाब देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे वो। आए नेताओं, किससे और भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं। भारत वंश की इस पानी के है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके फिर से मत भूल गए। 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमेरिकी जेट उड़ा डाला। याद करो, गाजी में झटके में ही डुबा दिया, ढाका में जलननी आदि दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 उन बंदी पाक सियारों को। याद करो शिमला समझौता, भारत के उपकारों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, लेकिन आतंकवाद नहीं होगा। आए देश के नौजवानों, हिंदू मुसलमानों, जब भी देश की आजादी आई तो हिंदू मुसलमानों ने सबने जान की बाजी लगाई। इन हिजड़ों के चक्कर में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम मरे जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान के घर में, किसी के घर में गाय बैल भैंस बकरी नहीं पैदा होती, सबके घर में मनुष्य पैदा होते, सबके घर में लड़का और लड़की पैदा होती। फिर जातिवाद कैसा? मानव धर्म रक्षा के लिए पैदा हुआ है। मानव का जन्म इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के परिवर्तन के लिए, इस देश में सतयुग लाने के लिए पैदा हुआ। आए देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, वो महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने इंकलाब के नारे लगाते अपने देश की आजादी को बचाया, अपने देश की बर्बादी से छुटकारा दिलवाया, अंग्रेजों का सफाया कराया। तो जब तक नारी शक्ति नहीं जागेगी तब तक भी परिवर्तन नहीं होगा। ये मानो चाहे जितना चिल्लाएं, अगर अकेले मनुष्य चिल्लाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हमारी नारी नहीं जागेगी। नारी शक्ति महान शक्ति होती है। नारियों की पूजा देवताओं ने की है, सबने नारी की पूजा की, और बिना नारी के अब कुछ नहीं होने वाला। कापी दे दो, कापी, कापी दे दो, कापी दारा के पास। आए देश के नौजवानों, उन शहीदों को याद करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि लाल कर दिया तुमने श्रीनगर की माटी को, किस गफलत में छेड़े सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब कश्मीरी परिवारों को, भय और लालच दिखाकर भेज रहे नादानों को। खुले शस्त्र और खुले प्रशिक्षण, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी सब हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो वरना फिर भड़क गिरेगा पूरा देश। देश हो गया खड़ा तो महाप्रलय आ जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में त्राही त्राही मच जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन आतंकवाद नहीं होगा। आए देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, एक बार हुंकार लगा दो, सोई हुई कौम को जगा दो। 64 सालों से देश को बचाने के लिए वही मसीहा आ गया, तो है कहां सुभाष? उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दादा भैया, हम बहुत देर सुनाते, लेकिन हमारे बहुत लोग वक्ता हैं, बहुत सुनाएंगे। समय मिलेगा हम फिर बताएंगे। समय आने दो, हम जब फिर बीच में समय ले लेंगे और आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य सुनेंगे, जिन्होंने 16 साल की उम्र से अपने जीवन को इस देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, इस देश के बचाने के लिए, इस देश में सतयुग लाने के लिए अपने जीवन को 16 साल की उम्र से आज अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। जिनका पूरा कर्तव्य, जिनका पूरा धर्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस में लगा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करना है। आए देश के नौजवानों, मेरा भी एक सपना है। जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, जीजाबाई, दुर्गाबाई, कमलाबाई, 3062 माताओं ने जान की बाजी लगाई थी इस देश के खातिर। इन माताओं, बहनों, इस बंगाल की खाड़ी से आवाज आ रही है कि उठ खड़े हो जाओ, अपने महान राष्ट्र नायक के कदम से कदम मिला दो। तो एक बार उनकी आजादी में अपनी आजादी, अपने सपनों को स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा दें। जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लहड़ी जैसे लोगों का बड़े हर्ष उल्लास से नाम लिया जाता है, लेकिन इन नेताओं ने उनका नाम पीछे कर दिया। अपना फोटो भगवान के रूप में लगाते हैं, मायावती और सबका दुर्गा देवी जी के नाम में लगाया जाता है। लेकिन नहीं, ये सुपर्णखा, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, निशाचनी है। इन्होंने देश की बर्बादी की, देश के साथ
कुछ कल्याण नहीं किया। आए देश के नौजवानों, तो एक आजादी का मेरा भी एक सपना है कि 1990 से मेरी नेताजी से मुलाकात हुई, 9 साल की उम्र से मेरी नेताजी से मुलाकात हुई और बराबर नेताजी से मुलाकात होती है। मेरे वहां सीतापुर में आश्रम, हमने अपनी जगह गांव में अपना घर मकान सब कुछ दे दिया, वहां पे आश्रम बन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साधु के बेश में वहां आते भी, गुरु पूर्णिमा में आए थे। जिसको दर्शन करना हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण रूप से जीवित हैं। ये मत समझो कि नेताजी नहीं है, ढोंग है, बवाल है। आज 1992 से 91 से हम लोग चिल्ला रहे हैं, अगर भारत सरकार के कोई होती हस्ती तो बंद कर देते जेल में हम लोगों को। ये जेल में ऐसे जेल में भेजते, काला पानी उतार देते जहां हम लोगों को मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया जाता। तो ऐ माताओं बहनों, एक सपना है कि राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी। चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी। और दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊंगी। दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊं। संगीता से सुशीला बाई बनकर बम का आविष्कार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूं। मोल चुकाना पड़े चाहे जो पीछे कदम न धरना है। मोल चुकाना पड़े चाहे जो पीछे कदम न धरना है। इंकलाब लक्ष्मीबाई का उसको पूरा करना है। इंकलाब लक्ष्मीबाई का उसको पूरा करना है। मैं जाबाज वीरांगना देवी भारत का श्रृंगार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी। राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी। बांग्ला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार है। देश के नौजवानों, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि देश में पूर्ण आजादी आएगी। वो सपना अधूरा है। उस सपने को लाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम एकजुट आवाज लगा दें कि है कहां सुभाष। इन नेताओं से कह दो अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मौका नहीं दिया जाएगा। तुमको दिल्ली, लखनऊ, बंगाल की चौखट में मार मार करके चौराहे पे अपना हिसाब ले लिया जाएगा। और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे जिनका सपना अधूरा है। उनके सपनों को साकार करने कदम से कदम मिला करके एक बार एकजुट होकर के है कहां सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुभाष चाहिए। एक बार आवाज लगा दो तो सुभाष आएगा। सुभाष के द्वारा ही इस देश का कायाकल्प होगा, इस देश में परिवर्तन आएगा, इस देश में राम राज्य आएगी और सदियों सदियों घर घर में सुभाष का नाम पूजेगा। जिस तरीके से राम और कृष्ण को पूजते हुए देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, कि उन शहीदों को मत भूलो जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, जिन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज वही देश है भारत देश। भारत को सोने की चिड़िया। शर्म खाओ, अपने देश की आजादी के लिए इस कान से अपने देश की आजादी के लिए इस कान से सुन करके उस कान निकाल देते हो। लेकिन शर्म खाओ, इस देश में वही वीर पैदा हुए जो वीर पैदा हुए थे। अरे धन्य है देश, भारत देश। भारत में कभी वीरों से पृथ्वी खाली नहीं। अगर आप नहीं करोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो के रहा है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, परिवर्तन कोई रोकने की ताकत किसी के नहीं। सांप बिच्छू पौधों से, पेड़ पौधों से परिवर्तन करा के जाएंगे। जिस तरीके से राम को कोई व्यक्ति नहीं मिला, बंदर भालुओं से परिवर्तन कराया तो परिवर्तन होगा, दावे के साथ कहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी
अपने को बचाना चाहते हो तो एक बार हुक्का लगा दो, कदम से कदम मिला दो कि सुभाष को लाना होगा, भारत देश बचाना होगा। भारत देश बचेगा, राम राज्य आएगी, सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा और घर घर में सुभाष का नाम पूजेगा। आए देश के नौजवानों कि देशवा आजाद भैले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूले बई कहानी, कबहू शहीदन की ना भूले बई कहाँ। जौने आजादी बादे सर बस लुटोले, बाल वृद्ध नारी नारी खूनेवा बहोले, बाल वृद्ध नारी नारी खूनेवा बहोल। आहुति दई के आपन, आहुति दई के आपन हंस के जिंदगानी, कबहू शहीदन की ना भूले बई कहाँ। दुखी राम बोस भगत उधम चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल से लेकर सब ही निछावर कैले हंस के ये जवानी, कबहू शहीदन की ना भूली बई कहानी, कबहू शहीदन की ना भूली बई कहानी। देशवा आजाद भैले देकर कुर्बानी, कबहू शहीदन की ना भूले बई। समय मिलेगा तो फिर अपने विचार को प्रकट करेंगे, समय बहुत कम है। आप लोगों को अगर फिर समय लेना होगा तो थोड़ी देर के लिए समय फिर देंगे। हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग, तमाम संत लोग आए हैं, इनके विचारों को सुनिए और अपने देश की आजादी में कदम से कदम मिलाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आप अब एक बार जोर की आवाज लगा दीजिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के स्वागत में। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ साथियों, मैं अब भारतीय सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आवें और आपके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। आप पूरा विवरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्यों नहीं आते हैं, किस परिस्थिति में है, न आने का कारण क्या है, सारी जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मिलेगी। जय हिंद, अध्यक्ष जय सुभाष। भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, सब तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शक्ति ओम, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्गों और माताओं, आज हम सब इस रविंद्र भवन में इकट्ठा हुए हैं एक विषय को लेकर के, और वह विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विषय। जो जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए हमें, आप सबको, भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। और बदले में उनको क्या मिला? एक टाट का टुकड़ा, बदले में गुमनामी में जीने का
एक अंधकार सा मिला, उन्हें प्रकाश न मिला, बदले में मिला एक मौत का दृष्टांत, बदले में मिला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी का तमगा। उन्हें भारत में खुलेआम घूमने की आजादी भी न मिली। ये किसकी देन है? ये हमारे देश के राजनीतिज्ञों की देन है। इस देश के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया, यह आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है। साथियों, आज 2012 है, 28 जुलाई 2012 है और 18 अगस्त 1945 की कहानी के बाद से लेकर के हम अपने देश के राजनेताओं के कानों पर जूं तक न रहेंगी कि हम उस शख्सियत के लिए कुछ करें, और वो शख्सियत हमेशा देश के लिए खड़ी रही और आज भी देश के लिए जीने और मरने का कसम 116 साल की उम्र में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ रहे हैं। हमें आप सबको उनके लिए कुछ करना होगा। उस समय उन्होंने कहा था, आजाद हिंद फौज का जब गठन किया, उसकी जिम्मेदारियां रास बिहारी बोस से संभाली, तो उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के लाखों लाखों नौजवान, लाखों लाखों लोग तैयार हो गए और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है तू कौम पे लुटाए जा। मित्रों, इस गाने के साथ लोग आगे बढ़ चले। कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, क्या क्या शहादत किया, लेकिन नेताजी को हमारे देश के आम नागरिक और देश के राजनीतिक लोगों ने भुला दिया। 1950 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरु दीक्षा लेकर के और सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने कठोर साधना की, इतनी कठोर साधना की, सारी शक्तियां अर्जित की और शक्तियां अर्जित करने के बाद 15 अगस्त 2003 की मध्यरात से उन्होंने अपने कदम बाहर निकाल दिए। भारत ने ही पूरी दुनिया में घूमने का काम शुरू किया और एक नई व्यवस्था भारत में पुनः लाने का संकल्प आगे उन्होंने बढ़ाया है। आज हमारा आप सबका परम कर्तव्य बनता है कि हम आप सब नेताजी के लिए कुछ करें और जिंदा मुर्दे के चक्कर में न फंसे, क्योंकि देश के राजनीतिज्ञों ने तो कभी भी सत्य बात को देश के आम नागरिक से नहीं बताया। हमेशा सब उसे फाइलों में रख करके कैद कर लिया, चाहे 15 अगस्त 1947 का समझौता रहा हो और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की बात रही हो। आप बताइए कि यह बात 18 अगस्त 1945 से चली आ रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। कोई कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम उनको लेकर के आए और उनके सम्मान के साथ भारत में व्यवस्था चलाने में उनकी भागीदारी लें। लेकिन ऐसा नेहरू ने भी नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, या देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने किसी ने कुछ नहीं किया नेताजी के लिए। सिर्फ क्या किया, जांच आयोग कमीशनों का गठन कर दिया और वो कमीशन गठित होते रहे, जांच चलती रही और जांच होने के बाद देश के आम जनता को गुमराह करने के लिए वो रिपोर्टें आई भी और उस रिपोर्टों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश की आम जनता कुछ न जान पाई। ये नेताजी की हकीकत है जो हमारे आपके घरों के लोग संसद और विधानसभाओं में बैठ गए और उन लोगों ने किया। हम उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का दत्तक पुत्र कहें तो भी कम नहीं है। जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए लोग हैं वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के दत्तक पुत्र हैं। अगर दत्तक पुत्र ना होते तो शायद सारे सत्य को वो लोग उजागर किए होते। मित्रों, हम उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। क्यों लेकर के चल रहे हैं? अब हम आपको आगे बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस तरीके से बदनाम करने के लिए क्या क्या हथकंडे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इनकी सरकार आगे बढ़ने लगी तो एक ऐसी योजना तैयार की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो शादी किया था एमिली सेंकल से, और उनकी एक बेटी है जिसका अनीता पप, अनीता ब्रिगेड और अनीता बोस के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए उनके साथ ये सब षड्यंत्र नेहरू ने किया। मित्रों, आप बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 15-18 अगस्त 1945 को गायब हो गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी कहां से आ गई, जिसका जन्म 19 अगस्त 1947 है। 45, 46, 47 कितना बड़ा गैप आया, उनकी बेटी कहां से आ गई, क्यों, कैसे, इस तरीके से। और फिर आजाद हिंद फौज का जो रिकॉर्ड है उसको अगर हम अध्ययन करते हैं और हम संत सम्राट की बात पर जाते हैं, संत सम्राट से जब हम लोगों ने पूछा इस विषय पर तो संत सम्राट ने सीधी बात कही कि एमिली सेंकल से वो मात्र मेरी सचिव थी और कुछ नहीं, हमारी किसी प्रकार से कोई शादी नहीं हुई, मैंने कभी भी शादी नहीं की। ये जो भी लोग उड़ा रहे हैं ये सरासर गलत उड़ा रहे हैं, मुझे बदनाम करने का ये प्रयास किया जा रहा है, मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं ब्रह्मचारी हूं। ये बात संत सम्राट की थी। मित्रों, अब आप बताइए, जिस व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है वही व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मैंने शादी नहीं की, हमारा कोई भी परिवार नहीं है, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं। अब आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। दूसरी बात, वो सीधे कहते हैं कि हमारे 3 दुश्मन हैं इस देश में, दुनिया में। कौन से दुश्मन? ब्रिटेन, अमेरिका और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 3 दुश्मन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं, और इस चीज को महान संत सम्राट सुभाष भी कहते हैं कि मेरे 3 दुश्मन हैं। इन 3 लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल करके जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया। वो आज भी अपनी उसी प्रचंड शक्ति के बल से, उसी ताकत के साथ वो आ सकते हैं, खुलेआम रह सकते हैं, देश के राजनीतिज्ञों को भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि भारत में किसी प्रकार का खून खराबा हो जिसका कलंक मेरे ऊपर आए। इसलिए वो अपनी योजना से, अपनी व्यवस्था से एक ऐसे रास्ते से आना चाहते हैं जिस रास्ते की जानकारी अभी हम आपको भी नहीं है। मित्रों, सिर्फ उन्होंने यही हम लोगों को निर्देश दिया कि बेटे जाओ, देश की आम जनता में यह बात रखो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और उनके साथ इन लोगों ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए हैं। आप बताइए कि एक व्यक्ति एक बार जन्म लेता है, एक बार उसकी मृत्यु होती है, लेकिन 23 जनवरी 1897 को जन्म लेने वाले व्यक्ति का 13 बार मृत्यु की घोषणा हो चुकी है। 13 बार मृत्यु की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन? 2 बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और 11 बार इंडिया गवर्नमेंट ने। और 13 बार करने के बाद भी हमारी सरकारें, हमारे देश के राजनेता ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तो नहीं हुई। क्यों? आप सोचिए, विचार करिए, वो क्यों कहते हैं, क्यों जांच आयोग के गठन होते हैं? अब अगर हमारे देश के राजनीतिज्ञों में जरा सी नैतिकता होती या नैतिकता का वो पाठ पढ़े होते तो जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जांच आयोग कमीशन का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था, और मनमोहन सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को लोकसभा में खारिज करते हुए 2021 तक उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि 2021 तक जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जांच आयोग कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। क्यों? आप सोचिए, आप विचार करें कि ऐसा क्यों है। मित्रों, हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं और यह कार्य इसलिए कर रही हैं, उनके निर्देश से कर रहे हैं।
जैसा वो निर्देश कर रही हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। देश की आम जनता को जगाने का कर्तव्य, ये जिम्मे हम आप सबके कंधों पर है। हम आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस राष्ट्र नायक के लिए हम आप कुछ करें और एक ऐसा रास्ता तैयार करें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्ग में कटीली झाड़ियां उगाई हैं, उन कटीली झाड़ियों को हमें साफ करना होगा कि कहीं हमारे उस महान पुरुष के पैरों में कोई कांटे न चुभ जाएं। मित्रों, ये कटीली झाड़ियां क्या हैं? कटीली झाड़ियां हमारे देश के राजनेता हैं जो हमेशा वो पैरों में चुभा करते हैं। तो हमें इनको साफ करना होगा। किस तरीके से साफ करना होगा? एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से। एक वैचारिक क्रांति क्या है? लोगों के विचारों को बदलना, लोगों के विचारों में इस बात को बैठाल देना और उसके बाद देश का आम नागरिक उठ करके खड़ा हो जाएगा। और जब देश का आम नागरिक उठ करके खड़ा हो जाएगा तो दिल्ली चलो, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, हमें लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराना है और वहां पर परेड करनी है। वह संकल्प संत सम्राट यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा हो जाएगा। उन्होंने एक संदेश और दिया कि जाओ, सिर्फ मुझे 1 लाख वॉलंटियर्स चाहिए, 1 लाख सैनिक चाहिए। 1 लाख वॉलंटियर्स की बात जो हुई तो 1 अरब लगभग 30 करोड़ आबादी भारत की है। 1 अरब 30 करोड़ लोगों में हम आप 1 लाख नए युवक भाई बहन तैयार हो जाएं और उस महापुरुष के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा दें। देश के राजनीतिक लोग फुटबॉल के तरीके से भागते नजर आएंगे क्योंकि उसके बढ़ते हुए वेग को रोक पाना किसी भी राजनेता के बस में नहीं है। आज जो कहते हैं लोग, ये मिलिट्री, ये पुलिस, ये पीएससी, ये फला, मित्रों, हर व्यक्ति भारत का है, हर व्यक्ति भारत का है, हर व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। उसकी विचारधारा बदलते देर नहीं लगेगी और वह आपके साथ कदम से कदम मिला देगा और आपके साथ वो चल पड़ेगा। मित्रों, ये हमारे अंदर, सबके अंदर एक सोच होनी चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, तभी हम आप कामयाब हो सकते हैं और इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे कई वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से आपको अवगत कराया और ये अवगत इसलिए कराया कि जिससे आपके विचार में, आपके दिमाग में ये बात बैठ सके और ये आगे का रास्ता हम आप तैयार कर सकें। मित्रों, देश के राजनीतिक लोग सत्ता मिलने के बाद क्या किए, क्या कर रहे हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर हम आप इस गफलत में हैं कि हमारा ये मुल्क आजाद हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमें दूसरी आजादी की लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ना होगा। पहली आजादी की लड़ाई जो लड़ी लोगों ने, उसमें क्रांतिकारी लोग अलग हताहत हो गए और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग रास्ते पर चले गए। लेकिन और उसमें हमारे देश का बंटवारा हुआ, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत माता के 2 खंड किए गए, 50 लाख हिंदू मुसलमान मार दिया गया। क्या क्या दुर्दशाएं हुई वो जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे अच्छी तरीके से जानते हैं। नेताजी खंडित भारत में नहीं गए थे, नेताजी अखंड भारत में गए थे और वो अखंड भारतवर्ष की कल्पना लिए आज भी सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए। ऐसी बात नहीं, हम आप तो उनके साथ हैं ही, लेकिन हमारे आपके जैसे सन्यासी उनके साथ हजारों हजारों सन्यासी इस तरीके से हैं जिनकी विचारधारा, जिनका कार्य सिर्फ देश है, भारत है और एक योजना के तहत ये नहीं कि हमें कुछ करना है, वो सारी व्यवस्था को बना करके तैयार कर दिए हैं। एक प्लेटफार्म भी उन्होंने बना करके तैयार कर दिया है, उस पर लाइनें भी बिछ गई हैं। सिर्फ क्या है कि उस पर रेलगाड़ी लाने की आवश्यकता है, ड्राइवर की आवश्यकता है और गार्ड की आवश्यकता है। और जब वो उस लाइन पर गाड़ी चलेगी तो जहां जहां जिस स्टेशन पर रुकेगी उस पर यात्री बैठते चले जाएंगे। मित्रों, ये सारी व्यवस्थाएं अपने पूज्य गुरुदेव ने तैयार कर ली हैं। हमें किसी प्रकार से शंका नहीं करनी चाहिए
ये मत सोचिए कि 116 साल का व्यक्ति क्या भारत के लिए कुछ कर सकता है। मित्रों, भारत के पक्षियों में वो ताकत है, भारत के मनुष्यों की बात तो छोड़िए। 160 साल की उम्र में भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और 116 साल के व्यक्ति आज आप जब देख लेंगे, उनके बराबर हम सब नवयुवक हैं, उनके बराबर चल नहीं सकते, उनके जैसा बोल नहीं सकते। मित्रों, आज भी हम आपको माइक की आवश्यकता पड़ती है सुनाने के लिए, उनको कोई माइक की आवश्यकता नहीं, 10-20 हजार आदमी को वैसे वो सुना सकते हैं। वो चलने लगे, हम आप दौड़ना पड़ेगा उनके बराबर चलने के लिए। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है उनके पास आज भी मौजूद है। ये हम लोगों का उनके साथ का जो व्यतीत समय है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी गुरु पूर्णिमा में आए थे तो जिस मंच पर बैठे हुए थे, जब वो बोल रहे थे तो मंच हिल रहा था और इतनी आवाज तेज थी कि 2 किलोमीटर तक वो आवाज उनकी जा रही थी। मित्रों सोचिए, वो तो पूर्ण रूप से ब्रह्म है, पूर्ण रूप से ब्रह्म है। जिस भगवान को हम खोजते फिर रहे हैं वो तो साक्षात ब्रह्म है, कहीं हमें खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों, ये सच्चे हमें निष्ठा, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, एक अपार विश्वास होना चाहिए, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। मित्रों, हम आज आपके इस आसनसोल में आए, आप सबों ने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सबों ने अपना कीमती समय हमारे वक्ताओं का, हमारा जो विचार सुना, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपके पश्चिमी बंगाल में भी लाखों लाखों वॉलंटियर्स तैयार हों और एक दूसरी आजादी की लड़ाई नेताजी के नेतृत्व में शुरू की जा सके। मित्रों, पूरा देश ऐसी बात नहीं है, पूरा देश उठ करके खड़ा हो जाएगा। हमें सिर्फ लोगों को जगाने की आवश्यकता है। जैसे एक नारा हमने दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाओ, भारत वर्ष बचाओ। यहां पर मुर्दे की बात समाप्त हो गई कि नेताजी 45 में मर गए, फलासन में मर गए, हम पीछे नहीं जाना चाहते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता आज भारत में क्यों है? क्योंकि हमारे सारे राजनेता भ्रष्ट हो चुके हैं, हमारे सारे राजनेता ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अमेरिका गवर्नमेंट के एजेंट बन चुके हैं और देश की जनता के ऊपर शोषण कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता इस देश को है। क्यों लोग, अब बात आती है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोग नहीं बन सकते? हाँ, बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी विचारधारा, उनकी जज्बा, उन पर विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, तब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन पाएंगे। मित्रों, एक व्यक्ति कितना ब्रिलियंट रहा, क्या क्या किया, उसको सब कुछ मालूम है। आज एक व्यक्ति को तैयार करने में समय लगेगा और समय भी नहीं है, समय भी नहीं है। ये परिवर्तन की बेला चल रही है, ये परिवर्तन की बेला चल रही है और ऐसे परिवर्तन के समय में हम आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, पूरा देश उठ करके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। सिर्फ हमें लोगों को जगाने की आवश्यकता है। मित्रों, थोड़ा हम आजादी के उसमें ले चलेंगे आपको। 15 अगस्त 1947 को किसी प्रकार की हमें कोई आजादी नहीं मिली, हमें डोमिनियन स्टेट मिला। अगर आजादी हमें मिली होती तो हमारे देश का राष्ट्रगान होता, हमारे देश का झंडे का निशान होता, हमारे देश का संविधान होता। तीनों चीजें हमारे देश की नहीं है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो अपने पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तैयार किया था, इसकी 4 अंतराएं हैं। ये स्वागत गान के रूप में 1911 में जब अपने देश में जॉर्ज पंचम आया था तो उसके स्वागत में ये गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, कि आप हमारे देश के भाग्य विधाता हो। सुबह उठते हैं तो हम आपका नाम लेकर के उठते हैं, सोते तो हैं तो हम आपका नाम लेकर के सोते हैं। इस तरीके से उसकी अलग वो है।
मित्रों, तो ये क्या है? फिर आजादी की लड़ाई क्रांतिकारियों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी चरखे से लड़ी, चरखे से आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस झंडे में चरखा गायब कर दिया गया, वो चक्र ले आया गया। देश के आम नागरिक को यह बताया गया कि ये तो मैंने अशोक के स्तंभ से लिया। क्या हम उस पूरे अशोक का स्तंभ अगर झंडे में लगा देते तो हमारा झंडा फहरने से इनकार नहीं करता, हमारा झंडा फहरता, तिरंगा झंडा फहरता। लेकिन वो चक्र लगाया गया, 7 दिन तक इस पर बैठक चली। लॉर्ड माउंटबेटन मानने को तैयार नहीं हुआ। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में 24 तीलियों का बना हुआ चक्र वो हमारे झंडे में स्थापित कर दिया गया। ये दूसरी भूल हुई। संविधान की बात आती है, जिस संविधान के तहत हमारे देश की व्यवस्था संचालित होती है, हम ये व्यवस्था अंगीकार करते हैं, हम संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, हम बाबा साहब का भी बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन 312 सदस्यीय समिति में उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और 312 सदस्यीय समिति में कहीं भी बाबा साहब का नाम नहीं था। बाबा साहब प्रारूपण समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस बात को उन्होंने कहा 3 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कानून मंत्री की हैसियत से कहा कि सभापति महोदय, मुझे दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आपने संविधान का निर्माण किया, लेकिन संविधान की एक लाइन भी मैंने नहीं लिखी। मैं तो मात्र एज ए कलर के रूप में मैं काम कर रहा था। मित्रों और सभापति महोदय, यह देश अगर इस संविधान के तहत चलाया गया तो प्रजातंत्र टूट जाएगा, गरीब आदमियों को कोई न्याय नहीं मिलेगा, हमारे देश का अधिकारी कर्मचारी 100 रुपए में बिक जाएगा, और इस संविधान को जलाने की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि इस संविधान में आग लगा दूंगा। ये बाबा साहब अंबेडकर के विचार हैं, मेरे नहीं, जो राज्यसभा में कानून मंत्री की हैसियत से कहा। अब आप बताइए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक हमारे राजनेताओं ने देश के आम नागरिकों की आंखों में धूल झोंका या नहीं झोंका? हमें गुमराह किया या नहीं किया? हम किस तरीके से परेशान हैं, पूरा देश किस तरीके से, कोई भ्रष्टाचार से परेशान है, तो कोई गरीबी से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। क्यों? हमारे देश के राजनेता इतने बड़े वो हो गए कि देश की कोई परवाह नहीं की, बिना इजाजत के अलग अलग काम करने लगे। तो ये क्या है मित्रों? तो ये बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जब इस सत्य को वो लोग 65 सालों में नहीं बता पाए, तो 65 सालों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी वो सत्य देश के आम नागरिक को नहीं बता पाए, क्योंकि उनसे जो गलतियां हुई उस गलतियों पर वो पर्दा डालते चले गए। हाँ, इतना जरूर किया हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने कि एक पर्दा लगाया। जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 4250 राजनेता खड़े हो गए, और एक तरफ पूरे भारत की जनता खड़ी हो गई। 4250 सांसद विधायक राज्यसभा मेंबर्स हैं हमारे देश में। वो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने पास खड़ा करके और जानते हुए अनजान बन गए, और 1 अरब 30 करोड़ आबादी को उन्होंने मूर्ख बनाए रखा कि आप लोग कुछ मत जानो, कुछ मत समझो। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्याग किया है, संघर्ष किया है, तो आज उनकी आवश्यकता इस देश को है, क्योंकि देश की इसलिए आवश्यकता है कि देश के सारे राजनेता गलत रास्ते पर चले गए। हमारे देश के बड़े बड़े महात्मा हमें सच्चे रास्ते पर नहीं ले जा पा रहे हैं, उनकी भी विचारधाराएं थोड़ा दूसरे रास्ते पर जा रही हैं। राष्ट्रीय भावना वो हमारे आपके अंदर नहीं जागृत कर पा रहे हैं। इसलिए एक मुखिया की आवश्यकता है, एक अगुवा की आवश्यकता है, और अगुवा के रूप में हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाना है, और उनके पीछे कदम से कदम मिलाना है, उनके लिए हमें काम करना है, और इस देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना है। एक भारत में नई शासन की व्यवस्था हमें इस देश में स्थापित करनी है। मित्रों,
ये हमारे आप सबके अंदर अपने को जागृत करना है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसके बाद धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई तो उस समय धन की आवश्यकता थी। हमारे आपके घरों के लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, दे दिया और आगे बढ़ते चले गए। आज ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको भी तन और मन से, धन से सहयोग करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये पूरी लड़ाई हम आप लड़ सकते हैं। क्योंकि इन राजनेताओं के पास अथाह संपत्तियां हैं, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है। आपके पास आपके द्वारा दिए गए एक एक रुपए ही आपके पास हैं, जिससे ये लड़ाई हम आप सब लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं और आम जनता के बीच में ये संदेश पहुंचा रहे हैं। जैसे आपके पश्चिम बंगाल में भाई अजय चक्रवर्ती जी, उनके पिताजी और कई ऐसे उनके साथी हैं जो कि इस आवाज को बुलंद किए हुए कई सालों से हैं। क्यों बुलंद किए हैं? ये भी पढ़े लिखे इंसान हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन इसलिए कि नहीं, सत्य के लिए लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? गीता का उपदेश जो उन्होंने दिया, क्या दिया? लेकिन आज उस पढ़ते तो हम गीता हैं, लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं करते मित्रों। लेकिन हमें अनुसरण करना पड़ेगा। भारतीय सुभाष सेना संगठन एक आध्यात्मिक और राजनीतिक संगठन है जो एक भारत को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत में मात्र एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत में एक दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं, ये तस्वीर महान संत सम्राट सुभाष जी की है, जिनको हम लोग भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सरकार भी कहती है। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने भी इसी व्यक्ति को, इसी महात्मा को डिक्टो किया कि 10 नामी बाबा के रूप में संत सम्राट ही असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी ने भी इसी चीज को डिक्टो किया, कहा कि यही व्यक्ति है। क्यों? 2 बार अमेरिकी CIA खुफिया एजेंसी ने इस बात को कहा कि ये मेरी दूसरी रिपोर्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी भी भारत में खुलेआम प्रकट हो सकते हैं। ये 19 अक्टूबर 2002 की बात है। मित्रों, क्यों ऐसा हो रहा है? तमाम बड़े बड़े मनीषियों ने भी नेताजी के बारे में कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है और वो आएंगे और वो अवतारी पुरुष है। मित्रों, तो ये सारी स्थितियां हैं और हमारे देश के राजनेता प्रधानमंत्री, मैं आपसे बताऊं कि 18 सालों से इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। 18 सालों से कम 3000 पत्र मैंने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखे होंगे। बहुत से मांग पत्र जिलाधिकारियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से भी भेजे गए, लेकिन किसी भी पत्र का कोई भी जवाब अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं दे पाए। 18 सालों में एक भी मेरे पत्रों का जवाब ना मिलना, ये आप जान सकते हैं कि क्या है। अगर हम झूठ बोलते, अगर हम गलत किए होते तो हमारे पत्रों का जवाब ये देते, लेकिन जो चीज सत्य है उस सत्य का मुकाबला न कर पाने की स्थिति में उस सत्य के बारे में एक भी लाइन का जवाब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी 18 सालों में नहीं दे पाए। यही कारण रहा है। मित्रों, ये सोचने का विषय है। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, तो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 56 घंटों में हमारे पास उसका जवाब भेज देता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं भेजता। ये क्या है? मुझे दुख है इस बात का। मित्रों, दुख है इस बात का। तो हमें आप सबको आवाज में आवाज मिलाना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि सुभाष जी को मान सम्मान के साथ उनको लाया जाए और उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना है, उनके नेतृत्व में भारत की व्यवस्था संचालित की जाए, उनसे दिशा निर्देश लिया जाए
कि हम भारत की व्यवस्था कैसे संचालित करें, कैसे भारत के लोग खुशहाल हों, कैसे ये व्यवस्था चले। तो इतना करने में इनको कौन सी परेशानी है? इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और लेकिन ऐसा वो कर पाने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। हमारे आपके सब किसी न किसी घर के कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई राज्यपाल है, कोई सांसद विधायक मंत्री है, लेकिन कोई भी एक आवाज नहीं बोलता। अब मैं दूसरी घटना आपको बताऊं। जिस आश्रम पर ये सीतापुर में घाघरा नदी के किनारे मुजैना आश्रम पर रहते थे, 23 साल वहां पर रहे। 23 सालों में जो भी व्यक्ति सांसद या विधायक उस क्षेत्र का भी जीत जाता था तो उस आश्रम के बगल से निकल जाता था, लेकिन उस आश्रम पर नहीं जाता था कि हम जाकर के उस महाराज ऐसे संत का दर्शन तो कर लें। सोचिए, एक सांसद, एक विधायक क्षेत्र का ऐसे व्यक्ति के पास ना जाना। इस पर हम लोगों ने उन लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर चला जाता हूं तो वहां जाने के बाद हो सकती है मेरी सदस्यता समाप्त हो जाए, कि आप तो वहां नेताजी से मिलने गए थे। ऐसे उस सांसद और विधायकों के जवाब हुआ करते थे। मित्रों, ये सबसे दुखद बात है कि ऐसा कौन सा कार्य, नेताजी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। देश के लिए लड़ना, देश को बचाना, ये तो राष्ट्रभक्ति में आता है, लेकिन बदले में उनको मिला राष्ट्रद्रोही का तमगा। तो हम आप सब लोग भारतीय सुभाष सेना के सदस्य बन करके एक नई आजादी की लड़ाई के लिए इस आंदोलन में हम आप भागीदारी निभाएं, कदम से कदम मिलाएं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हम आप सब काम करें। मित्रों, हमारे कई वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बताया, थोड़ा सी मैंने भी जानकारी आपको दी है, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि आप सबों के अंदर विचारधारा जरूर उफान मारेगी, जरूर अपने मन मस्तिष्क से आप विचार करेंगे और इस कार्य को करने में आप सक्षम होंगे। और ये जिम्मेदारियां आप सब भी उठाएंगे। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और प्रत्येक नागरिक की जब जिम्मेदारी है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत। Those of you who are poor and obscure, I should like to see your poverty and obscurity devoted to the service of your motherland. Work that she might prosper, suffer that she might rejoice. জয় এসো, চলে এসো। জয় প্রভু, জয় ঠাকুর, জয় হিন্দ।